Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today I am going to start your first exercise. That is exercise 1.1 of this chapter, that is integers. So let's start question number 1. Following number line shows the temperature in degrees Celsius, that is degree Celsius, at different places on a particular day. See, number line is been shown in this question. On this number line, names of some cities and its temperature is being shown. First one is, suppose first one is Ooty. So this is 10 degrees Celsius, 11, 12, 13, 14. 14 degrees Celsius. Temperature of Ooty is 14 degrees Celsius. Temperature of Bengaluru is, this one is 20, 21, 22. 22 degrees Celsius. Temperature of Shimla is, this one is 5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे ज़ीरो के तो क्या कौन से इंटीजर्स आते हैं? माइनस में. सो टेम्परेचर विल बी शोन इन माइनस. सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज, दिस इज -1, दिस इज -2. -2 डिग्री सेल्सियस. एंड टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज, दिस वन इज -5, दिस वन इज -6, -7, -8. -8 degree Celsius. Now, let's read question number 1, students. First question A part क्या है? Observe this number line. आपको ये number line observe करनी है and write the temperature of the places marked on it. और आपको जितनी भी cities इसके ऊपर mentioned हैं, उन सब cities के आपको क्या बताने हैं? Temperature कितने हैं वो आपको mention करने हैं. So, let's solve A part of question number 1. So student, in this way you have to make a notebook of mathematics, that is of 200 pages ruled papers. Ruled papers की आपको 200 pages की आपको notebook बनानी है मैथ्स के लिए. फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए हम दूसरी नोटबुक बनाएंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है? यू हैव टू राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. जैसा मैंने आपको शो कर रखा है, लाइक दैट ओनली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि मैं आपको PDF नहीं भेजूंगी. यू हैव टू वॉच द वीडियोज़ एंड देन यू हैव टू लर्न हाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ. तो मैं PDF नहीं भेजूंगी. आपको खुद को ही वो क्या नाम वीडियोज़ को देखकर, आपको समझकर, सीखकर फिर अपने आप ही आपको अपनी नोटबुक में उसे सॉल्व करना पड़ेगा. जिससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वो सम्स भी अच्छी तरह से आ जाएंगे. सो now let's solve question number 1, students. Question number 1 is solution is given. First you have to draw a number line like it is given in your question, and then the temperature of various cities are given in this number line. आप कैसे solve करना है? A part is you have to show the temperature of different cities. So temperature of different cities, Lahaul Spiti is equal to -8 degree Celsius. As I told you, Lahaul Spiti का कितना temperature है? -8 degree Celsius. See, this one is -5, -6, -7, and this one is -8 degree Celsius. Now temperature of Srinagar is -2 degree Celsius. This one, Srinagar का जो temperature है -2 degree Celsius. This one is 0, -1, -2, -2 degree Celsius. Temperature of Simla, this one temperature of Simla is 5 degree Celsius. देखो ये रहा 5 degree Celsius. Temperature of Ooty is 14 degree Celsius. देखो आप यहाँ पर, this one is 10, 11, 12, 13, 14. Temperature of Ooty is 14 degree Celsius. And temperature of Bengaluru is 22 degree Celsius. Temperature 20, 21, and this one is 22 degree Celsius. So in this way you have to write A part, answer of A part of question number 1. Now B part, what B part says, what is the temperature of difference between the hottest and the coldest places among the above. आपको क्या बताना है? आपको बताना है जितने भी टेम्परेचर दिए हुए हैं इसमें सबसे गर्म सिटी कौन सी है? सबसे गर्म सिटी है आपकी बेंगलुरु. और सबसे ठंडी सिटी कौन सी है? सबसे ठंडी कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? लाहौल स्पीति. तो उनके टेम्परेचर, उन दोनों सिटीज़ के टेम्परेचर का डिफरेंस आपको यू हैव टू मैंशन इट, यू हैव टू कैलकुलेट इट. सो this is the solution of B part, students. This is the hottest place, that is Bengaluru. टेम्परेचर कितना है उसका? 22 डिग्री सेल्सियस.
एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू लाहौल स्पीति, टेम्परेचर कितना है उसका -8 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दीज टू सिटीज। तो टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। ध्यान रखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हॉटेस्ट सिटी में से कोल्डेस्ट सिटी के टेम्परेचर को माइनस करना होगा। सो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा मैंने आपको बताया था अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में दैट माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। सो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस दैट कम्स टू बी 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो temperature difference of these two cities is equal to 30 degree Celsius. Now C part of this question is what is the temperature difference between Lahaul Spiti and Srinagar? Now this is the temperature of Lahaul Spiti. Lahaul Spiti का टेम्परेचर हमने कितना निकाला था? -8 डिग्री सेल्सियस। और आपको डिफरेंस किसका बताना है? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। श्रीनगर का कितना था आपका? श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस। देखो ये रहा -2 डिग्री। इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन सी पार्ट। तो टेम्परेचर डिफरेंस का तो मतलब मैंने बताया था बच्चों आपको। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर दैट इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस -8। -2 किसका है आपका? -2 है आपका श्रीनगर का। और लाहौल स्पीति का कितना है? -8। तो -2 -8 नाउ माइनस प्लस। तो अब कितना हुआ? -2 + 8 दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस अगेन माइनस। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले नंबर में से, इसमें बड़ा नंबर क्या है आपका? 8। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा? 8 - 2 दैट कम्स टू बी 6 डिग्री सेल्सियस। प्लस का क्यों आया? क्योंकि 8 में से हमने माइनस किया। बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है आपका 8। उसमें किसका साइन है? प्लस का। तो हमारे आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। सो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज 6 डिग्री सेल्सियस। Now student, let's solve D part of question number 1 and D part says can we say temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature of Simla? Is it also less than the temperature of Srinagar? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पहले समझो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर का मतलब अगर हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर को और टेम्परेचर ऑफ शिमला को प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो टेकन टुगेदर हो गया। क्या वो टेम्परेचर जो है लेस है शिमला के टेम्परेचर से? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला को ऐड करना पड़ेगा, दोनों के टेम्परेचर को। जो आंसर आएगा फिर हमें बताना पड़ेगा कि क्या वो शिमला के टेम्परेचर से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व डी पार्ट। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना बताया है? -2 डिग्री सेल्सियस। ये ऑलरेडी मैंने आपको ए पार्ट में निकाला। टेम्परेचर ऑफ शिमला दैट इज गिवन 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर मतलब दोनों का मिला के टेम्परेचर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू प्लस करना होगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। अगेन माइनस प्लस माइनस। 5 में से 2 को माइनस किया, आंसर इज 3। वाई +3? बिकॉज 5 इज प्लस। तो 5 किस में है? 5 बड़ा है, उस पर प्लस का साइन है, तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो जब हमने दोनों का टेम्परेचर को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है क्या इन दोनों का टेम्परेचर जब हमने प्लस किया तो उसका टेम्परेचर क्या शिमला के टेम्परेचर से ज़्यादा है या कम है, ये बताना है। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसको? यस, we can say that temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature of Simla because क्योंकि शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस और ये कितना निकला हमारा? 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस कम है। सो बिकॉज 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Now student, let's solve question number 2 and that is in a quiz. Positive marks are given for score for correct answer and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score in 5 successive rounds were 25 minus 5
-10, 15 and 10. What was his total at the end? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक क्विज कंपटीशन हुआ जिसके अंदर जैक को पॉजिटिव मार्क्स मिले करेक्ट आंसर देने पे और नेगेटिव मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर देने पे। अगर जैक का स्कोर जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये है तो बताओ कि टोटल उसका एंड में कितना होगा। सो लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। So this is the solution of question number 2. Marks scored by Jack in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. तो 5 सक्सेसिव राउंड्स के अंदर जैक ने कितना स्कोर किया आपका -25, -5, -10, 15 और 10। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना होगा एट द एंड। तो टोटल एट द एंड इज इक्वल टू 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, सबको प्लस कर देंगे। अगेन प्लस माइनस -5, अगेन प्लस माइनस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जो प्लस वाले जो जितने भी आपके डिजिट्स हैं उनको एक साइड में कर लेंगे, इंटीजर्स को अलग कर देंगे और नेगेटिव इंटीजर्स को एक साइड में कर देंगे। तो प्लस वाले कौन कौन से हैं? 25 है, 15 है और 10 है। 25, 15 और 10 प्लस वाले मैंने रख लिए पॉजिटिव इंटीजर्स को और नेगेटिव इंटीजर्स को -5 और -10 को एक साइड में कर दिया। अब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। सो 25 प्लस 15 प्लस 10 दैट कम्स टू बी 45 आया इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने पर, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया? माइनस का 15 आया हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे? 45 में से 15 माइनस किया, आवर आंसर विल बी 10 मार्क्स। तो वी कैन से दैट जैक स्कोर 30 मार्क्स एट द एंड ऑफ द क्विज competition. So student, this is the end of today's video. We will meet again tomorrow with the rest of the question of this chapter. Up till then, goodbye and thank you. Again, I am telling you, you will not get your PDF. You have to copy all these questions from the video only. So, thank you.